الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا درست وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان سے لیے گئے مواد کی 5ویں قسط دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ سحری کا درست وقت کے 23 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے رمضان و قرآن کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اعلیٰ نعمتیں کھانے کا شرف عطا کر، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کی نیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کے لیے نیت شرط ہے، لہذا بے نیت روزہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے پیے تب بھی اس کا روزہ نہ ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل یا نذر معین کا روزہ، یعنی اللہ پاک کے لیے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو، مثلاً خود سن سکے اتنی آواز سے یوں کہا ہو کہ مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع الاول شریف کی ہر پیر شریف کا روزہ ہے، تو یہ نذر معین ہے اور اس منت کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ ان تینوں قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی، اسے ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، سے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا۔ نصف النہار شرعی کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ۔ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو، اس دن کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت شمار کر لیجئے اور اس سارے وقت کے 2 حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا، مثلاً آج صبح صادق ٹھیک 5 بجے ہے اور غروب آفتاب ٹھیک 6 بجے، تو دونوں کے درمیان کا وقت کل 13 گھنٹے ہوا۔ ان کے 2 حصے کر لیں تو دونوں میں کا ہر ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب صبح صادق کے 5 بجے کے بعد والے ابتدائی 6.5 گھنٹے ساتھ ملا لیجئے، تو اس طرح دن کے 11:30 بجے کے فوراً بعد نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اب ان 3 طرح کے روزوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ بیان کردہ 3 قسم کے روزوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزہ ہیں، ان سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ راتوں رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لیجئے۔ اگر صبح صادق ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی، مثلاً قضائے روزہ رمضان، کفارے کے روزے، قضائے روزہ نفل۔ روزہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب بے عذر شرعی توڑنا گناہ ہے، اگر کسی طرح سے بھی ٹوٹ گیا، خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر، اس کی قضا بہرحال واجب ہے۔ روزہ نذر غیر معین، یعنی اللہ پاک کے لیے روزہ کی منت تو مانی ہو مگر دن مخصوص نہ کیا ہو، اس منت کا پورا کرنا واجب ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے مانی ہوئی ہر شرعی منت کا پورا کرنا واجب ہے، جبکہ زبان سے اس طرح کے الفاظ اتنی آواز سے کہے ہوں کہ خود سن سکے، مثلاً اس طرح کہا، مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے ایک روزہ ہے۔ اب چونکہ اس میں دن مخصوص نہیں کیا کہ کون سا روزہ رکھوں گا، لہذا زندگی میں جب بھی منت کی نیت سے روزہ رکھ لیں گے
मन्नत अदा हो जाएगी। मन्नत के लिए ज़बान से कहना शर्त है, और ये भी शर्त है कि कम से कम इतनी आवाज़ से कहें कि खुद सुन लें। मन्नत के अल्फाज इतनी आवाज़ से अदा तो किए कि खुद सुन लेता, मगर बहरापन या किसी किस्म के शोर व गुल वगैरह की वजह से सुन ना पाया। जब भी मन्नत हो गई इसका पूरा करना वाजिब है, वगैरह वगैरह। इन सब रोज़ों की नियत रात में ही कर लेनी ज़रूरी है। मुझे माह रमज़ान से प्यार है कि 20 हरूफ की निस्बत से रोज़े की नीयत के 20 मदनी फूल। नंबर 1, अदाए रोज़े रमज़ान और नज़र मुअय्यन यानी मुकर्रर करदा मन्नत और नफल के रोज़ों के लिए नीयत का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद से ज़हवा कुबरा यानी निस्फुन नहारे शरई से पहले पहले तक है। इस पूरे वक्त के दौरान आप जब भी नीयत कर लेंगे ये रोज़े हो जाएंगे। नंबर 2, नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहना शर्त नहीं, मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। अगर रात में रोज़े रमज़ान की नीयत करें तो यूँ कहें, नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्द रमज़ान। तर्जमा, मैंने नीयत की कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए कल इस रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा रखूँगा। नंबर 3, अगर दिन में नीयत करें तो यूँ कहें, नवैतु अन असूम हादल यौम लिल्लाहि ताला मिन फर्द रमज़ान। तर्जमा, मैंने नीयत की कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए आज इस रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा रखूँगा। नंबर 4, अरबी में नीयत के कलिमात अदा करने उसी वक्त नीयत शुमार किए जाएंगे जबकि उनके माना भी आते हों। और ये भी याद रहे कि ज़बान से नीयत करना ख्वाह किसी भी ज़बान में हो उसी वक्त कारआमद होगा जबकि उस वक्त दिल में भी नीयत मौजूद हो। नंबर 5, नीयत अपनी मादरी ज़बान में भी की जा सकती है। अरबी में करें ख्वाह किसी और ज़बान में, नीयत करते वक्त दिल में इरादा मौजूद होना शर्त है, वरना बेख्याली में सिर्फ ज़बान से रटे रटाए जुमले अदा कर लेने से नीयत न होगी। हाँ, ज़बान से रटी हुई नीयत कह ली मगर बाद में नीयत के लिए मुकर्ररा वक्त के अंदर दिल में भी नीयत कर ली तो अब नीयत सही है। नंबर 6, अगर दिन में नीयत करें तो ज़रूरी है कि ये नीयत करें कि मैं सुबह सादिक से रोज़ादार हूँ। अगर इस तरह नीयत की कि अब से रोज़ादार हूँ, सुबह से नहीं, तो रोज़ा न हुआ। नंबर 7, दिन में वो नीयत काम की है कि सुबह सादिक से नीयत करते वक्त तक रोज़े के खिलाफ कोई अम्र यानी मामला ना पाया गया हो। अलबत्ता सुबह सादिक के बाद भूल कर खा पी लिया या जिमा कर लिया तब भी नीयत सही हो जाएगी। नंबर 8, आपने अगर यूं नीयत की कि कल कहीं दावत हुई तो रोज़ा नहीं और ना हुई तो रोज़ा है, ये नीयत सही नहीं, आप रोज़ादार ना हुए। नंबर 9, माह रमज़ान के दिन में ना रोज़े की नीयत की ना ये कि रोज़ा नहीं, अगरचे मालूम है कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है तो रोज़ा ना होगा। नंबर 10, गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर रात के किसी वक्त में भी नीयत की, फिर इसके बाद रात ही में खाया पिया तो नीयत ना टूटी, वो पहली ही काफ़ी है, फिर से नीयत करना ज़रूरी नहीं। नंबर 11, आपने अगर रात में रोज़े की नीयत तो की मगर फिर रातों रात पक्का इरादा कर लिया कि रोज़ा नहीं रखूँगा तो अब वो आपकी की हुई नीयत जाती रही। अगर नई नीयत ना की और दिन भर रोज़ादारों की तरह भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा न हुआ। नंबर 12, दौरान नमाज कलाम यानी बातचीत की नीयत तो की मगर बात नहीं की तो नमाज फासिद न होगी। इसी तरह रोज़े के दौरान तोड़ने की सिर्फ नीयत कर लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक तोड़ने वाली कोई चीज़ ना करे। नंबर 13, सहरी खाना भी नीयत ही है, ख्वाह
माह रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए, मगर जब सहरी खाते वक्त ये इरादा है कि सुबह को रोज़ा ना रखूँगा तो ये सहरी खाना नियत नहीं। नंबर 14, रमज़ान मुबारक के हर रोज़े के लिए नई नियत ज़रूरी है। पहली तारीख या किसी भी और तारीख में अगर पूरे माह रमज़ान के रोज़े की नियत कर भी ली तो ये नियत सिर्फ उसी एक दिन के हक में है, बाकी दिनों के लिए नहीं। नंबर 15, अदाए रमज़ान और नज़र मुअय्यन और नफल के अलावा बाकी रोज़े, मसलन क़ज़ाए रमज़ान और नज़र गैर मुअय्यन और नफल की क़ज़ा और नज़र मुअय्यन की क़ज़ा और कफ़ारे का रोज़ा और तमत्तु का रोज़ा, इन सब में ऐन सुबह चमकते यानी ठीक सुबह सादिक के वक्त या रात में नियत करना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखना है ख़ास उसी मखसूस रोज़े की नियत करें। अगर इन रोज़ों की नियत दिन में यानी सुबह सादिक से लेकर ज़हवा कुबरा से पहले पहले की तो नफल हुए, फिर भी इनका पूरा करना ज़रूरी है। तोड़ेंगे तो क़ज़ा वाजिब होगी। अगरचे ये बात आपके इल्म में हो कि मैं जो रोज़ा रखना चाहता था ये वो रोज़ा नहीं है बल्कि नफल ही है। हाशिया, हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 क़िरान, नंबर 2 तमत्तु, नंबर 3 इफ़राद। क़िरान और तमत्तु वाले पर हज अदा करने के बाद बतौर शुक्राना हज की कुर्बानी वाजिब है, जबकि इफ़राद वाले के लिए मुस्तहब। अगर क़िरान और तमत्तु वाले बहुत ज़्यादा मिस्कीन और मोहताज हैं मगर क़िरान और तमत्तु की नियत कर ली है और अब इनके पास न कोई कुर्बानी के लायक जानवर है, न रकम, न ही कोई ऐसा सामान वगैरह है जिसे फरोख्त करके कुर्बानी का इंतज़ाम कर सकें, तो अब कुर्बानी के बदले इन पर 10 रोज़े वाजिब होंगे। 3 रोज़े हज के महीनों में यानी यकुम शव्वालुल मुकर्रम से 9वीं ज़ुल्हिज्जतिल हराम तक एहराम बांधने के बाद इस बीच में जब चाहें रख लें। तरतीबवार रखना ज़रूरी नहीं, नागा करके भी रख सकते हैं। बेहतर यह है कि 7, 8 और 9वीं ज़ुल्हिज्जतिल हराम को रखें और फिर 13 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के बाद बकिया 7 रोज़े जब चाहें रख सकते हैं। बेहतर यह है कि घर जाकर रखें। नंबर 16, आपने ये गुमान करके रोज़ा रखा कि मेरे ज़िम्मे रोज़े की क़ज़ा है। अब रखने के बाद मालूम हुआ कि गुमान गलत था। अगर फ़ौरन तोड़ दें तो कोई हरज नहीं, अलबत्ता बेहतर यही है कि पूरा कर लें। अगर मालूम होने के फ़ौरन बाद ना तोड़ा तो अब लाजिम हो गया, इसे नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ेंगे तो क़ज़ा वाजिब है। नंबर 17, रात में आपने क़ज़ा रोज़े की नियत की। अगर अब सुबह शुरू हो जाने के बाद इसे नफल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। हाँ, रातों रात नियत तब्दील की जा सकती थी। नंबर 18, दौरान नमाज भी अगर रोज़े की नियत की तो ये नियत सही है। नंबर 19, कई रोज़े क़ज़ा हों तो नियत में ये होना चाहिए कि उस रमज़ान के पहले रोज़े की क़ज़ा, दूसरे की क़ज़ा, और अगर कुछ इस साल के क़ज़ा हो गए, कुछ पिछले साल के बाकी हैं, तो ये नियत होनी चाहिए कि इस रमज़ान की क़ज़ा और उस रमज़ान की क़ज़ा। अगर दिन और साल को मुअय्यन यानी फिक्स न किया, जब भी हो जाएंगे। नंबर 20, माअल्लाह अज़्ज़ वजल आपने रमज़ान का रोज़ा रख लेने के बाद कसदन यानी जानबूझकर तोड़ डाला था तो आप पर इस रोज़े की क़ज़ा भी है। और अगर कफ़ारे की शराइत पाई गई तो 60 रोज़े कफ़ारे के भी। अब आपने 61 रोज़े रख लिए, क़ज़ा का दिन मुअय्यन यानी फिक्स न किया तो इसमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों अदा हो गए। दाढ़ी वाली बच्ची, रोज़ा और दीगर आमाल की नीयतें सीखने का जज्बा बेदार करने के लिए आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों में
आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर कीजिए और दोनों जहानों की बरकतें हासिल कीजिए। आपकी तरगीब के लिए मदनी काफिले की एक खुशगवार व खुशबूदार मदनी बहार आपके गोश गुजार करता हूँ। चुनाचे रंशोर लाइन बाबुल मदीना कराची के एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि एक बार आशिकान रसूल के 3 दिन के मदनी काफिले में एक तकरीबन 26 साला इस्लामी भाई भी शरीके सफर थे। वो दुआ में बहुत गिरियाव जारी करते थे। इस्तिफसार यानी पूछने पर बताया कि मेरी एक ही बच्ची है और उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल उगने शुरू हो गए हैं। इसकी वजह से मुझे सख्त तशवीश है। एक्सरे और टेस्ट वगैरह से सबब सामने नहीं आ रहा और कोई भी इलाज कारगर नहीं हो पा रहा। इनकी दरखास्त पर शुरकाए मदनी काफिला ने उनकी बच्ची के लिए दुआ की। सफर मुकम्मल हो जाने के बाद जब दूसरे दिन उस दुखियारे इस्लामी भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुसर्रत से झूमते हुए ये खुशखबरी सुनाई कि बच्ची की अम्मी ने बताया कि आपके मदनी काफिले में सफर पर रवाना होने के दूसरे ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हैरत अंगेज तौर पर बच्ची के चेहरे से बाल ऐसे गायब हुए हैं जैसे कभी थे ही नहीं। सहरी करना सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ वजल के करोड़ा करोड़ एहसान कि उसने हमें रोजे जैसी अज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई है और साथ ही कुव्वत के लिए सहरी की न सिर्फ इजाजत मरहमत फरमाई बल्कि इसमें हमारे लिए ढेरों सवाबे आखिरत भी रख दिया। बाज लोगों को देखा गया है कि कभी सहरी करने से रह जाते हैं तो फखरिया यूं कहते सुनाई देते हैं, हमने आज बगैर सहरी के रोजा रखा है। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये फख्र का मौका हरगिज नहीं। सहरी की सुन्नत छूटने पर तो अफसोस होना चाहिए कि अफसोस ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत छूट गई। 1000 साल की इबादत से बेहतर। हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन अल मारूफ बाबा बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपनी रहमत से इतनी ताकत बख्शी है कि मैं बगैर खाए पिए और बगैर साजो सामान के भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, मगर चूंकि ये उमूर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, इसलिए मैं इनसे बचता हूँ। मेरे नजदीक सुन्नत की पैरवी 1000 साल की नफल इबादत से बेहतर है। बहरहाल तमाम तर आमाल का हुस्न जमाल इत्तिबाए सुन्नते महबूब रब्बे जुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिन्हा है। सोने के बाद सहरी की इजाजत न थी। इब्तिदान रोजा रखने वाले को गुरूब आफताब के बाद सिर्फ उस वक्त तक खाने पीने की इजाजत थी जब तक वो सो ना जाए। अगर सो गया तो अब बेदार होकर खाना पीना ममनू था, मगर रब्बे करीम अज़्ज़ वजल ने अपने प्यारे बंदों पर एहसान फरमाते हुए सहरी की इजाजत मरहमत फरमा दी। इसका सबब बयान करते हुए खजानुल इरफान में सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह नकल करते हैं। सहरी की इजाजत की हिकायत। हजरत सैयदना सरमा बिन कैस रदी अल्लाह अन्हुमा मेहनती शख्स थे। एक दिन बहालत रोजा अपनी जमीन में दिन भर काम करके शाम को घर आए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा रदी अल्लाह अन्हा से खाना तलब किया। वो पकाने में मसरूफ हुई। आप रदी अल्लाह अन थके हुए थे, आंख लग गई। खाना तैयार करके जब आप रदी अल्लाह अन को जगाया गया तो आप रदी अल्लाह अन ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों गुरूब आफताब के बाद सो जाने वाले के लिए खाना पीना ममनू हो जाता था। चुनाचे खाए पिए बगैर आप रदी अल्लाह अन ने दूसरे दिन भी रोजा रख लिया। आप रदी अल्लाह अन कमजोरी के सबब बेहोश हो गए तो इनके हक में ये आयत मुकद्दसा
नाजिल हुई। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। तर्जुमा कंजुल ईमान। और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से पौफट कर, फिर रात आने तक रोजे पूरे करो। इस आयत मुकद्दसा में रात को सियाह डोरे से और सुबह सादिक को सफेद डोरे से तशबीह दी गई। माना ये है कि तुम्हारे लिए रमजान मुबारक की रातों में खाना पीना मुबाह यानी जायज करार दे दिया गया है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे ये भी मालूम हुआ कि रोजे का अजान फजर से कोई ताल्लुक नहीं, यानी फजर की अजान के दौरान खाने पीने का कोई जवाज ही नहीं। अजान हो या ना हो, आप तक आवाज पहुंचे या ना पहुंचे, सुबह सादिक से पहले पहले आपको खाना पीना बंद करना होगा। सुन्नत के 3 हुरूफ की निस्बत से सहरी के मुतालिक 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंबर 1, रोजा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और दिन यानी दोपहर के वक्त आराम यानी कैलूला करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। नंबर 2, 3 आदमी जितना भी खा लें उनसे कोई हिसाब न होगा, बशर्त ये कि खाना हलाल हो। नंबर 1, रोजादार इफ्तार के वक्त। नंबर 2, सहरी खाने वाला। नंबर 3, मुजाहिद जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते में सरहद इस्लाम की हिफाजत करे। नंबर 3, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी खाने वालों पर। क्या रोजे के लिए सहरी शर्त है? सहरी रोजे के लिए शर्त नहीं, सहरी के बगैर भी रोजा हो सकता है, मगर जानबूझकर सहरी ना करना मुनासिब नहीं कि एक अजीम सुन्नत से महरूमी है। और सहरी में खूब डटकर खाना ही जरूरी नहीं, चंद खजूरें और पानी ही अगर बनियते सहरी इस्तेमाल कर ली जब भी काफी है। खजूर और पानी से सहरी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त मुझसे फरमाया, मेरा रोजा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो मैंने कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश किया। खजूर से सहरी करना सुन्नत है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रोजादार के लिए एक तो सहरी करना बजाते खुद सुन्नत और खजूर से सहरी करना दूसरी सुन्नत, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से सहरी करने की तरगीब दी। चुनाचे सैयदना साइब बिन यजीद रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर बेहतरीन सहरी है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। सहरी का वक्त कब होता है? हनफियों के बहुत बड़े आलिम हजरत अल्लामा मौलाना अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बाजों के नजदीक सहरी का वक्त आधी रात से शुरू हो जाता है। सहरी में ताखीर अफजल है, जैसा कि हजरत सैयदना याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि प्यारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों को अल्लाह अज़्ज़ व जल महबूब रखता है। नंबर 1 इफ्तार में जल्दी, और नंबर 2 सहरी में ताखीर, और नंबर 3 नमाज के क़ियाम में हाथ पर हाथ रखना। सहरी में ताखीर से कौन सा वक्त मुराद है? प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहरी में ताखीर करना
मुस्तहब है, मगर इतनी ताखीर भी ना की जाए कि सुबह सादिक का शुबा होने लगे। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताखीर से मुराद कौन सा वक्त है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह तफसीर नईमी में फरमाते हैं, इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। फिर सवाल जहन में उभरा कि रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए। इसका जवाब यह है कि गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक रात कहलाती है। मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई। इस तरह गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक जो 9 घंटे का वक्फा गुजरा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर बराबर 6 हिस्से कर दीजिए, हर हिस्सा 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटे यानी 2:30 बजे ता 4 बजे के दौरान सुबह सादिक से पहले पहले सहरी करना ताखीर से करना हुआ। सहरी और इफ्तार का वक्त रोजाना बदलता रहता है। बयान किए हुए तरीके के मुताबिक जब चाहें रात का छठा हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर रात सहरी कर ली और रोजे की नीयत भी कर ली तब भी बकिया रात के दौरान खा पी सकते हैं, नई नीयत की हाजत नहीं। अज़ान फज्र नमाज के लिए है, ना कि रोजा बंद करने के लिए। बाज लोग सुबह सादिक के बाद फज्र की अजान के दौरान खाते पीते रहते हैं और बाज कान लगाकर सुनते हैं कि अभी फला मस्जिद की अजान खत्म नहीं हुई, या कहते हैं वो सुनो दूर से अजान की आवाज आ रही है, और यूं कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अगर खाते नहीं तो पानी पीकर अपनी इस्तिलाह में रोजा बंद करते हैं। इस तरह रोजा बंद तो क्या करेंगे, रोजे को बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं और यूं सुबह सादिक के बाद खा या पी लेने के सबब उनका रोजा होता ही नहीं और सारा दिन भूख प्यास के सिवा कुछ इनके हाथ आता ही नहीं। रोजा बंद करने का ताल्लुक अज़ान फज्र से नहीं, सुबह सादिक से पहले पहले खाना पीना बंद करना जरूरी है, जैसा कि आयत मुक़द्दसा के तहत गुजरा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मुसलमान को अक्ल सलीम अता फरमाए और सही औकात की मालूमात करके रोज़ा, नमाज वगैरह इबादत दुरुस्त बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खाना पीना बंद कर दीजिए। इल्म दीन से दूरी के सबब आजकल काफी लोग अजान या सायरन ही पर सहरी व इफ्तार का दारोमदार रखते हैं, बल्कि बाज तो अजान फज्र के दौरान ही रोजा बंद करते हैं। इस आम गलती को दूर करने के लिए क्या ही अच्छा हो कि रमजान मुबारक में रोजाना सुबह सादिक से 3 मिनट पहले हर मस्जिद में बुलंद आवाज से सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद कहने के बाद इस तरह 3 बार ऐलान कर दिया जाए। आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, आज सहरी का आखिरी वक्त मसलन 4:12 है, वक्त खत्म हो रहा है, फौरन खाना पीना बंद कर दीजिए। अजान का हरगिज इंतजार ना फरमाइए। अजान सहरी का वक्त खत्म हो जाने के बाद नमाज फज्र के लिए दी जाती है। हर एक को ये बात जहन नशीन करनी जरूरी है कि अजान फज्र सुबह सादिक के बाद ही देनी होती है और वो रोजा बंद करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नमाज फज्र के लिए दी जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी काफले की नीयत करते ही मुश्किल आसान हो गई। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर फरमाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयां हाथ आएंगी। आपकी ज़ौक़ अफजाई के लिए
مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ لانڈھی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بڑے بھائی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اخراجات کا انتظام نہیں تھا، انہیں سخت تشویش تھی، قرض لینے کا ذہن بھی نہیں بن رہا تھا کہ ادا کرنے میں تاخیر کی صورت میں جان سے پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے نام پر بٹا لگ سکتا ہے۔ ایک دن انتہائی پریشانی کے عالم میں انہوں نے نماز ظہر ادا کی اور دل ہی دل میں نیت کی کہ اگر رقم کا انتظام ہو گیا تو مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کروں گا۔ نماز سے فراغت کے بعد ابھی نمازیوں سے ملاقات اور انفرادی کوشش میں مصروف تھے کہ امام صاحب جو رشتے میں ان کے تایا جان تھے اور ان کی پریشانی سے واقف بھی، انہوں نے انہیں بلایا اور الحمدللہ عز وجل بغیر سوال کے خود ہی رقم دینے کا وعدہ فرما لیا۔ وہ اسلامی بھائی دوسرے ہی دن مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے ان کی الجھن دور ہو گئی۔ تاریخ طے ہوتے وقت بارے قرض تلے دبے ہوئے تھے۔ الحمدللہ عز وجل بڑے بھائی جان کی شادی بھی ہو گئی اور قرض بھی اتر گیا۔ قلب بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو، شادیاں بھی رچیں، قافلے میں چلو، قرض اتر جائے گا، خوب رزق آئے گا، سب بلائیں ٹلیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے چھوٹے بھائی کی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے ادائے قرض کا انتظام، رقم کا اہتمام اور بڑے بھائی کی شادی والا کام ہو گیا۔ قرض سے نجات کا عمل۔ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے۔ پہاڑ جتنا قرض ہوگا تب بھی انشاءاللہ عز وجل ادا ہو جائے گا۔ عمل تا حصول مراد جاری رکھیے۔ قرض اتارنے کا وظیفہ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: یا اللہ عز وجل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیے۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو۔ ایک مکاتب نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، اگر تم پر جبل سیر جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: یا اللہ عز وجل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ صبح و شام کی تعریف۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح اور ابتدائی وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ مدنی مشورہ۔ پریشان حال اسلامی بھائی کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے وہاں دعا مانگے۔ اگر خود مجبور ہے، مثلا اسلامی بہن ہے، تو اپنے گھر میں سے کسی اور کو سفر پر بھجوائے۔
افطار کا بیان۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیجیے، مگر کھجور یا چھوارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، سوال: روزہ افطار کرنا کس چیز سے مسنون یعنی سنت ہے؟ جواب: خرمائے ترد یعنی کھجور، اور نہ ہو تو خشک یعنی چھوارا، اور نہ ہو تو پانی۔ افطار کی دعا: افطار کر لینے کے بعد مثلاً کھجور کھا کر یا تھوڑا سا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا بھی پڑھیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ دوسری حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہو سکے تو مزید دعائیں بھی کیجیے کہ وقت قبول ہے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں۔ افطار کی دعا عموماً قبل از افطار پڑھنے کا رواج ہے، مگر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 631 میں اپنی تحقیق یہی پیش کی ہے کہ دعا افطار کے بعد پڑھی جائے۔ افطار کے لیے اذان شرط نہیں، ورنہ ان علاقوں یا شہروں میں روزہ کیسے کھلے گا جہاں مساجد ہی نہیں یا اذان کی آواز نہیں آتی۔ بہرحال اذان نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، جہاں مساجد ہوں، زہ نصیب وہاں یہ طریقہ رائج ہو جائے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے، بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے: عاشقان رسول روزہ افطار کر لیجئے۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے افطار کے فضائل کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار کروانے کی عظیم الشان فضیلت۔ نمبر 2، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جبریل امین کے مصافحہ کرنے کی علامت۔ نمبر 3، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نمبر 5، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افطار۔ حضرت سیدنا
अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज से पहले तर खजूरों से रोजा इफ्तार फरमाते। तर खजूरें ना होती तो चंद खुश्क खजूरें यानी छुआरों से, और ये भी ना होती तो चंद चुल्लू पानी पीते। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अहदीस मुबारका में सहरी और इफ्तार में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब मौजूद है। बेशक खजूर में लातादाद बरकतें और कई बीमारियों का इलाज है। सैयदी आला हजरत की 25वीं शरीफ के 25 हरूफ की निस्बत से खजूर के 25 मदनी फूल। नंबर 1, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने सेहत निशान है, आलिया की अजवा में हर बीमारी से शिफा है। आलिया यानी मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व तादीमा में मस्जिद कुबा शरीफ की जानिब एक जगह का नाम अजवा, मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व तादीमा की सबसे अजीम खजूर का नाम। एक रिवायत के मुताबिक 7 रोज तक रोजाना 7 अजवा खजूरें खाना जुजाम यानी कोड़ में नफा देता है। नंबर 2, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, अजवा खजूर जन्नत से है, इसमें जहर से शिफा है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जिसने निहार मुंह अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए, उस दिन उसे जादू और जहर भी नुकसान ना दे सकेंगे। नंबर 3, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, खजूर खाने से कूलंज यानी बड़ी अंतड़ी का दर्द नहीं होता। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने सेहत निशान है, निहार मुंह खजूर खाओ, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 5, हजरत सैयदना रबी बिन खुसैम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे नजदीक हामिला के लिए खजूर से और मरीज के लिए शहद से बेहतर किसी चीज में शिफा नहीं। नंबर 6, सैयदी मोहम्मद अहमद ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हामिला को खजूर खिलाने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लड़का पैदा होगा जो कि खूबसूरत, बुर्दबार और नरम मिजाज होगा। नंबर 7, जो फाके यानी भूख की वजह से कमजोर हो गया हो, उसके लिए खजूर बहुत मुफीद है क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसके खाने से जल्द तवानाई बहाल हो जाती है, लिहाजा खजूर से इफ्तार करने में ये हिकमत भी है। नंबर 8, रोजे में फौरन बर्फ का ठंडा पानी पी लेने से गैस, तबखीर यानी मैदा और जिगर के वर्म का सख्त खतरा है। खजूर खाकर ठंडा पानी पीने से नुकसान का खतरा टल जाता है, मगर सख्त ठंडा पानी हरगिज नहीं पीना चाहिए। नंबर 9, खजूर और ककड़ी नीज खजूर और तरबूज एक साथ खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसमें भी हिकमतों के मदनी फूल हैं। तबीबों का कहना है कि इससे जिनसी व जिस्मानी कमजोरी और दुबलापन दूर होता है। मक्खन के साथ खजूर खाना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नंबर 10, खजूर खाने से पुरानी कब्ज दूर होती है। नंबर 11, दमे, दिल, गुर्दे, मसाने, पित्ते और आंतों के अमराज में खजूर मुफीद है। ये बलगम खारिज करती, मुंह की खुश्की दूर करती और पेशाब आवर है। नंबर 12, दिल की बीमारी और काला मोतिया के लिए खजूर गुठली समेत कूट कर खाना मुफीद है। नंबर 13, खजूर भिगोकर इसका पानी पी लेने से जिगर की बीमारियां दूर होती हैं। दस्त की बीमारी में भी ये पानी मुफीद है। रात को भिगोकर सुबह निहार मुंह इसका पानी पिएं, मगर भिगोने के लिए पानी डालकर फ्रीजर में न रखें। नंबर 14, खजूर दूध में उबाल कर खाना
बेहतरीन मुकव्वी यानी ताकत देने वाली ग़िज़ा है। ये ग़िज़ा बीमारी के बाद की कमज़ोरी दूर करने के लिए बेहद मुफीद है। नंबर 15, खजूर खाने से जख्म जल्दी भरता है। नंबर 16, यरकान यानी पीलिया के लिए खजूर बेहतरीन दवा है। 17, ताज़ा पक्की खजूरें सफरा यानी पित्त जिससे कै के जरिए कड़वा पानी निकलता है और तेजाबियत को खत्म करती हैं। नंबर 18, खजूर की गुठलियां आग में जलाकर इसका मंजन बना लीजिए। ये दांत चमकदार और मुंह की बदबू दूर करता है। नंबर 19, खजूर की जली हुई गुठलियों की राख लगाने से जख्म का खून बंद होता और जख्म भर जाता है। नंबर 20, खजूर की गुठलियों को आग में डालकर धुनी लेने से बवासीर के मस्से खुश्क हो जाते हैं। नंबर 21, खजूर के दरख्त की जड़ों या पत्तों की राख से मंजन करना दांतों के दर्द के लिए मुफीद है। जड़ों या पत्तों को पानी में उबालकर उससे कुल्लियां करना भी दांतों के दर्द में फायदेमंद है। 22, जिसे खजूर खाने से किसी किस्म का नुकसान यानी साइड इफेक्ट होता हो वो अनार के रस या खशखाश या काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फायदा होगा। 23, अध पक्की या पुरानी खजूरें बैक वक्त यानी एक ही वक्त में खाना नुकसानदेह है। इसी तरह खजूर के साथ अंगूर या किशमिश या मुनक्का मिलाकर खाना, खजूर और इंजीर बैक वक्त खाना, बीमारी से उठते ही कमजोरी में ज्यादा खजूरें खाना और आंखों की बीमारी में खजूरें खाना मुजिर यानी नुकसानदेह है। 24, एक वक्त में 5 तोला यानी 58.32 ग्राम से ज्यादा खजूरें ना खाएं। पुरानी खजूर खाते वक्त खोलकर अंदर से देख लीजिए क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात सुरसुरियां यानी छोटे छोटे लाल कीड़े होती हैं, लिहाजा साफ करके खाइए। जिस खजूर में कीड़े होने का गुमान हो उसे साफ किए बगैर खाना मकरूह है। बेचने वाले चमकाने के लिए अक्सर सरसों का तेल लगा देते हैं, लिहाजा बेहतर यह है कि खजूरें चंद मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिए ताकि मक्खियों की बीट और मेल कुचेल वगैरह छूट जाए, फिर धोकर इस्तेमाल फरमाइए। दरख्त की पकी हुई खजूरें ज्यादा मुफीद होती हैं, मगर धोए बगैर खजूरें बल्कि कोई सा फल और सब्जी वगैरह इस्तेमाल ना करें, वरना गर्दो गुबार, मक्खियों, कीड़े मकोड़ों की बीट और जरासीम कुछ दवाओं के असरात पेट में जाकर बीमारियों का बाइस हो सकते हैं। 25, मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तादीमा की खजूरों की गुठलियां मत्थे किए किसी अदब की जगह डाल दीजिए या दरिया बुर्द फरमा दीजिए, बल्कि हो सके तो सरोते से बारीक टुकड़ियां करके या पीस कर डिबिया में डालकर जेब में रख लीजिए और छालिया की जगह इस्तेमाल करके इसकी बरकतें लूटिए। कोई चीज ख्वा दुनिया के किसी भी खित्ते की हो, जब मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा की फजाओं में दाखिल हुई तो मदीने की हो गई, लिहाजा आशिकाने रसूल उसका अदब करते हैं। क्या हदीस में बताया हुआ इलाज हर एक कर सकता है? प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान करदा खजूर के 25 मदनी फूल में मुख्तलिफ अमराज में खजूर के जरिए इलाज तजवीज़ किया गया है। इस सिलसिले में इन बातों का सुनना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नफा बख्श पाएंगे। चुनांचे हदीस पाक काला दाना कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है के तहत मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हर मर्ज में शिफा से मुराद हर बलगमी और रतूबत के अमराज में शिफा है, क्योंकि कलौंजी गर्म और खुश्क होती है, लिहाजा मरतूब यानी तरी वाली और सर्दी की बीमारियों में मुफीद होगी। आगे चलकर मजीद फरमाते हैं, यहाँ मुराद अरब की आम बीमारियां हैं, यानी कलौंजी
عرب کی عام بیماریوں میں مفید ہے۔ خیال رہے کہ احادیث شریفہ کی دوائیں کسی حاذق طبیب یعنی ماہر طبیب کی رائے سے استعمال کرنی چاہیے۔ اہل عرب کو تجویز کردہ دوائیں صرف اپنی رائے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے طبعی مزاج اہل عرب کے طبعی مزاج سے جدا گانا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خاص تاکید ہے کہ اس کتاب میں دیا ہوا کوئی بھی نسخہ اپنے طبیب سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہ کیا جائے، اگرچہ یہ نسخہ اسی بیماری کے لیے ہو جس سے آپ دوچار ہوں۔ یاد رہے، لوگوں کی طبعی کیفیات جدا جدا ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی دوا کسی کے لیے شفا و آرام کا باعث بنتی ہے تو کسی کے لیے موت کا پیام لاتی ہے۔ لہذا آپ کی جسمانی کیفیات سے واقف آپ کا مخصوص طبیب ہی یہ طے کر سکتا ہے کہ آپ کو کون سا نسخہ موافق آ سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، بادشاہ عادل کی، اور نمبر 2، روزہ دار کی بوقت افطار، اور نمبر 3، مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں۔ پیارے روزہ داروں، الحمدللہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس اس موقع پر سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر ہمارے آگے انواع و اقسام کے پھلوں، کباب، سموسوں، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور شربتوں پر ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے کچھ اسلامی بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ! جنت کے طلبگاروں، اتنی بھی غفلت مت کیجیے۔ نماز باجماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ یاد رکھیے، بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقتہ نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔ غذا سے افطار کے بعد نماز کے لیے منہ صاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز باجماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے، یوں ہی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ غذا کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر
इससे ज्यादा कोई चीज गिरा नहीं कि वो अपने साथी को नमाज पढ़ता देखें और उसके दांतों में खाने के रेजे फंसे हों। मस्जिद में इफ्तार करने वालों के लिए अक्सर मुंह साफ करना दुश्वार होता है कि अच्छी तरह सफाई करने बैठें तो जमात निकल जाने का अंदेशा होता है। लिहाजा मशवरा है कि सिर्फ एक आध खजूर खाकर पानी पी लें। पानी को मुंह के अंदर खूब जुम्बिश दें, यानी हिलाएं, ताकि खजूर की मिठास और इसके अज्जा छूटकर पानी के साथ पेट में चले जाएं। जरूरतन दांतों में खिलाल भी करें। अगर मुंह साफ करने का मौका ना मिलता हो तो आसानी इसी में है कि सिर्फ पानी से इफ्तार कर लीजिए। मुझे वो रोजादार बड़े प्यारे लगते हैं जो तरह तरह की नेमतों के थालों से बेनियाज होकर गुरूबे आफताब से पहले पहले मस्जिद की पहली सफ में पानी लेकर बैठ जाएं कि इस तरह इफ्तार से जल्दी फरागत भी मिले, मुंह भी साफ रहे और पहली सफ में तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज भी नसीब हो जाए। कुरान शफात करके जन्नत में ले जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने कुरान पाक सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान पाक में है उस पर अमल किया, कुरान शरीफ उसकी शफात करेगा और जन्नत में ले जाएगा।